رواں رواں، تحفظ دین کا کارواں رواں رواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کئی ہفتوں سے حقوق العباد کا جو تعلق ہے اس کے احکام شرعیہ اور حقوق العباد کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے باتیں بتلائی جا رہی تھی، اور ارادہ بھی یہی تھا کہ ہر چیز کو واضح طور پر پیش کیا جائے، ہر چیز کو صاف ستھرے انداز میں بیان کیا جائے، لیکن اس سلسلے کو روکتے ہوئے اس وقت کا جو تقاضا ہے وہ حج کا تقاضا ہے۔ حج کے ایام بھی چل رہے ہیں اور حج کے مہینے بھی چل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ضروری ہدایات ہیں وہ سامنے آنا بھی بہت ضروری ہے۔ حج نہایت اہم رکن ہے اسلام کا، اور اس حج کا جو تعلق ہے وہ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، اس مہینے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو عبادات کا جو سلسلہ ہے وہ رمضان کے مہینے سے چل رہا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، مقدس مہینہ آیا، تو اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ روزے رکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے اور رمضان کے مہینے کی قدر کو جان کر رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادت کی اور اپنے نامہ اعمال میں ایک ذخیرے کو تیار کیا۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا تو شوال کا مہینہ آیا، اور آج شوال کی 28 تاریخ ہے، اور شوال کا جو تعلق ہے وہ حج کے مہینوں سے ہے۔ شوال اور شوال کے بعد آنے والا مہینہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے دن کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ کر گھر سے چلتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ شوال کے مہینے میں بھی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اور شوال کے مہینے میں بھی بہت سی فضیلت انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں، کیونکہ شوال کا مہینہ بھی مبارک مہینہ مانا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کو سارے سال روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔
30 روزے رمضان کے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو 30 روزے رمضان میں رکھیں تو اس کے ثواب کی مقدار 300 ہوئی، اور 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھیں اور اس کے ثواب کی مقدار 60 ہوئی، تو رمضان سے لے کر شوال تک جو 36 روزے رکھے گئے ہیں، اگر کسی آدمی نے رکھے ہیں تو اس کو 360 روزوں کا ثواب ملا ہے، اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو آدمی رمضان کے روزے بھی رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور شوال کا مہینہ کو ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اماں عائشہ سے نکاح ہوا ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور پھر اماں عائشہ کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو شوال کا مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے، اور بہت سی خصوصیات شوال کے مہینے کو بھی حاصل ہیں۔ شوال کے مہینے کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ بھی بہت سے اعتبار سے برکت والا اور فضیلت والا مہینہ مانا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کے بعد اور مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد حج کے علاوہ 4 عمرے فرمائے، اور چاروں کے چاروں عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے۔ اس اعتبار سے ذی قعدہ کا مہینہ بھی دوسرے مہینوں میں کہیں نہ کہیں فوقیت رکھتا ہے۔ تو ذی قعدہ اور شوال کا مہینہ، اور شوال سے پہلے رمضان کا مہینہ، اور ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کے 10 دن، یہ ایک عبادات کی ترتیب اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ پہلے رمضان میں روزے رکھو، اور پھر حج کا جو تعلق ہے اور حج کے جو مہینے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وقت حج کا جو مہینہ چل رہا ہے، شوال کا مہینہ بھی حج کا ہی مہینہ کہلاتا ہے۔ حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے، بنیادی چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار کرے اور اس بات کو دل و جان سے مانے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس آدمی نے اس کا اقرار کیا تو آگے سارے اعمال کی بنیاد یہی چیز ہے، اور جس آدمی نے کلمے کا ہی انکار کر دیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہی انکار کر دیا، تو اس نے تو ساری کی ساری چیزوں کا انکار کر دیا، اور وہ تو کافر و مرتد ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بنیاد جو اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دل و جان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی حقیقی عبادت کے لائق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ دوسری اسلام کی بنیادی چیز ہے نماز کا پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو اسلام کی دوسری بنیادی چیز نماز ہے، اور اسلام کی تیسری بنیادی چیز زکوٰۃ ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے مال پر سال گزر گیا اور وہ مال قرضے سے خالی ہے اور وہ مال بڑھنے والا ہے، مال نامی ہے، اور وہ مکمل طور پر اپنی ملکیت میں ہے، تو اس آدمی پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ساری تفصیلات آ چکی ہیں۔
चौथी चीज जो इस्लाम की बुनियादी चीज है वह है रमजान के रोजे रखना। रमजान के रोजे फर्ज हैं। और पांचवी चीज यह अजीमुशान इबादत हज है जो इस्लाम की बुनियादी चीज है। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हज और कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुकर्ररा दिनों में ही किया जा सकता है। हज अगर कोई आदमी चाहे पूरे साल करो तो नहीं कर सकता, बल्कि हज के जो दिन मुकर्रर हैं, जिलहिज्जा के शुरू के दिन जो मुकर्रर हैं, हाजी उन्हीं दिनों में हज करेगा। अगर कोई हाजी रमजान में हज करना चाहे तो उसका रमजान में हज नहीं होगा। इसी तरह से कुर्बानी एक ऐसी बड़ी इबादत है कि अगर कोई आदमी ईद उल अज़हा के 3 दिन के अलावा कुर्बानी करना चाहता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो हज के दिन भी मुकर्रर है, कुर्बानी के दिन भी मुकर्रर है। अलबत्ता रोजों का जो ताल्लुक है, रमजान में तो रोजे रखना फर्ज है, और अगर कोई आदमी आम दिनों में रोजा रखना चाहे तो वो नफली रोजे, या फिर उसके अगर रमजान में रोजे छूट गए उन रोजों की कज़ा, या अगर उसने रोजों की नजर मानी है उस नजर को पूरा करने के लिए रोजों को रखा जा सकता है। लेकिन हज को हज के दिनों के अलावा नहीं किया जा सकता। इबादत की 3 किस्में हैं। एक वो इबादत है जिसका ताल्लुक बदन से है, जिसको इबादत बदनिया कहते हैं, जैसे नमाज का पढ़ना। इबादत की दूसरी किस्म वो है जिसका ताल्लुक माल से है और बदन का उसमें कोई दखल नहीं है, जैसे ज़कात का देना। और इबादत की तीसरी किस्म वो है जिसमें बदन को भी दखल है और माल को भी दखल है, और वो है जैसे हज करना। हज के अंदर आदमी पैसे भी खर्च करता है और हज के अंदर आदमी जिस्म के एतबार से भी इबादत करता है, और हज में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इबादत की 3 किस्में हुई, एक इबादत बदनिया है और एक इबादत मालिया है, और तीसरी किस्म है इबादत बदनिया और मालिया, दोनों की दोनों इबादतें इस तीसरी किस्म में जमा हो गई। बात समझ में आ रही है भाई? इंसान जब हज का इरादा करता है तो इहराम बांधता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इहराम जो है सिर्फ 2 चादरों का नाम है। नहीं, बल्कि इहराम के माना है अपने ऊपर बहुत सी चीजों को हराम कर लेना। जब इंसान हज या उम्रे की नियत करके इहराम बांधता है और वो तलबिया पढ़ लेता है तो उसके ऊपर बहुत सी जायज चीजें भी हराम हो जाती हैं। जैसे वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, वो नाखून नहीं काट सकता, इहराम की हालत में आदमी बदन के किसी भी हिस्से के बाल नहीं काट सकता, या फिर अपनी बीवी से जायज तरीके पर नफ्सानी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर सकता। और जब इंसान ने 2 चादरें पहनने के बाद जबान से ये कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, तो इस बात का इकरार कर रहा है कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। और क्यों हाजिर हूं? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाने काबे को तामीर किया था और अल्लाह ताला ने ये कहा था, ए मेरे खलील, जाओ लोगों में जाकर ये ऐलान करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर तामीर हो चुका है, और वो अल्लाह के घर में आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का हज करें और यहां आकर तवाफ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतें करें।
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ी पर खड़े होकर ऐलान किया था कि ए लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर तैयार हो चुका है, आओ अल्लाह के घर की तरफ सवार होकर, पैदल होकर, करीब से, दूर से और दुनिया के चप्पे चप्पे से लोग और अल्लाह की मखलूक, अल्लाह को मानने वाले यहाँ आओ और अपनी पेशानियां और अपने माथे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में टेको। तो जो हजारों साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, हर हज करने वाला जब तलबिया पढ़ता है और अपनी जबान से ये कहता है अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर हूँ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस ऐलान का वो जवाब दे रहा है कि मैं हाजिर हो चुका हूँ। इब्राहिम, आपने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ऐलान किया था और मैं भी आपके ऐलान पर यहां हाजिर हो चुका हूं। इहराम का बांधना इंसान की दीवानगी को जाहिर करता है। जब आदमी अपनी जबान से ही कहता है अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हो चुका, अपना घर छोड़ा, अपना दर छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अपने बीवी बच्चे छोड़े, अपना खानदान छोड़ा, अपना रिश्तेदार छोड़े, अपना महल्ला छोड़ा, यहां तक कि मैंने अपना मुल्क छोड़कर 7 समंदर पार करके अपना जान और अपनी माल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो चुका हूं। अल्लाह अगर ये दीवानगी नहीं है तो और क्या है, अल्लाह मेरे इस हज को कबूल फरमा ले। सिर्फ एक हाजी ये आवाज लगाता है और तलबिया पढ़ता है, सर खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, बगैर सिले कपड़े पहन रखे हैं और न तेल का इस्तेमाल है, न साबुन का इस्तेमाल है, गर्द गुब्बार में लथपथ है एक हाजी, और वही आवाज लगाता है बार बार अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैं हाजिर हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे पर बहुत प्यार आता है। और ये इहराम का बांधना ये इंसान को कफन की याद दिलाता है। जब इंसान मर जाता है और ईमान वाला होता है तो उसको बगैर सिले हुए कपड़े पहनाए जाते हैं जिनमें जेब नहीं होती। तो इहराम भी इंसान के कफन की याद दिलाता है कि कोई कितना ही बड़ा हाकिम हो, कोई कितना बड़ा बादशाह हो, कोई कितना बड़ा मालदार हो, कोई कितना बड़ा जायदाद वाला हो, कोई कितना बड़ा अफसर हो, कोई कितना बड़ा गरीब हो, कितना बड़ा फकीर हो, कितना बड़ा मिस्कीन हो, कोई कुछ भी हो, जब इंसान मर जाता है और ईमान वाला है तो उन्हें बगैर सिले हुए कपड़ों में और बगैर जेब के कपड़ों में ही दफनाया जाता है और कफनाया जाता है। तो हज एक अज़ीमुश्शान इबादत है। जब इंसान ने इहराम बांध लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार लिया और अपनी हाजिरी को लगवा दिया, अल्लाह मैं हाजिर हूं, उसके बाद अल्लाह का हुक्म होता है कि चल मेरे बंदे, तो मेरे घर में आया तो फिर मेरे घर का तवाफ कर और 7 चक्कर काट। अब आदमी काटता है 7 चक्कर, अकल में आने वाली बात नहीं है। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चक्कर क्यों कटवा रहा है, ये तो कोई अकल की बात नहीं है। तो अजीजों, इस्लाम में अकल का कोई दखल नहीं है। इस्लाम में तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म दे दिया वो चाहे अकल में आए ना आए, चाहे तुम्हारा दिमाग काम करे ना करे, वो कर गुजरना है। ये है इस्लाम। अब 7 चक्कर काटता है और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत का इजहार करता है। और इजहार मोहब्बत करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इंसान की फितरत है कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है या इश्क होता है, प्यार हो जाता है, तो इंसान उसे गले लगाना चाहता है, इंसान उसे मिलना चाहता है, इंसान उसको बोसा देना चाहता है, उसको अपने महबूब को चूमना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारा निजाम बनाया और इंसान की फितरत का ख्याल रखा और फरमाया, ए इंसान, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है और तो मोहब्बत का इजहार करना चाहता है
تو مجھے چومنا چاہتا ہے تو جا حجر اسود کو چوم، میں تجھے وہاں ملوں گا۔ بندہ چومتا ہے کالے پتھر کو۔ اور اگر تو مجھے گلے لگانا چاہتا ہے تو حجر اسود اور خانہ کعبے کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان ایک دیوار ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، جا اس سے چمٹ، میں تجھے وہاں ملوں گا، تو جو مجھ سے مانگے گا میں تجھے وہاں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا کا سارا نظام اس طرح سے بنایا، اور یہ بندہ اپنا محبت کا اظہار اللہ رب العزت سے کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک طرف تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ان پتھروں کی مورتیوں کو پوجنا نہیں ہے، انہیں چومنا نہیں ہے، اور جو ان پر عقائد رکھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ پتھروں کو چومو، حجر اسود کو چومو۔ کیا بات ہے! پتہ یہ چلا کہ چاہے وہ حجر اسود ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، چاہے وہ مسجد حرام ہو یا مدینہ منورہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی چیز فوقیت یا افضلیت نہیں رکھتی۔ سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم وہاں ہے پتھروں کو نہیں چومنا، پتھروں کو نہیں پوجنا، اور یہاں ہے کہ پتھروں کو چومنا ہے، اور اس پتھر کو چومنا بھی ہے، اور ملتزم کی دیوار سے لپٹ کر دعا بھی مانگنی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسلام کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کے حکم پر ہے۔ اب 8 ذی الحجہ آیا، حکم ہوا جاؤ مینا کی طرف جاؤ اور 5 نماز ادا کرو۔ حالانکہ حاجی آرام سے مسجد حرام میں رہ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اور ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر مل رہا ہے، لیکن کیا حکم ہوتا ہے؟ جاؤ مسجد حرام کو خالی کرو اور مینا کے میدان میں جاؤ، وہاں جا کر 5 نماز ادا کرو۔ اس حکم سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد حرام میں بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب اسی وقت جب ہم چاہیں گے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم مینا کے میدان میں جاؤ، تو تمہارا مسجد حرام میں رکنا حاجی کے لیے جائز نہیں ہے، تمہیں مینا کے میدان میں جانا پڑے گا اور وہاں 5 نماز ادا کرنی پڑے گی۔ مینا کے میدان سے ہم تمہیں عرفات میں لے جائیں گے، جہاں تک نگاہ دوڑاؤ میدان ہی میدان ہے، نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی گھر ہے۔ وہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھو اور مغرب تک مجھے یاد کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، اور میرے قریب ہونے والے اعمال کرتے رہو، مجھ سے مانگتے رہو۔ جب مغرب کی نماز ہو جائے تو نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف نکل جانا ہے۔ حالانکہ حج کے علاوہ تو یہ حکم ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو، اور عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا لیکن نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کو ساتھ میں پڑھنا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ حج کے علاوہ ہم نے حکم دیا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھنی ہے، اور حج کے دنوں میں ہم نے ہی حکم دیا کہ مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ تو بھائیو، اصل چیز ہے اللہ کا حکم دین میں، اللہ جو کہہ رہا ہے بندے کا کام ہے اس کو کر گزرنا۔ اب مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، وہاں نہ کوئی خیمہ ہے نہ کوئی رہنے سہنے کا سامان ہے، پھر مزدلفہ میں رات گزار کر پھر مینا کی طرف لوٹو اور 3 دن وہاں پڑے رہو۔ جمرات 3 دیواریں ہیں، ان پہ ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر کوئی آدمی عقل سے سوچے کہ لاکھوں کے حساب سے آدمی مینا کے میدان میں 3 دن پڑا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ان پر خرچ ہو رہا ہے، کاہے کے لیے؟ کنکریاں مارنے کے لیے۔ ہر سلیقے مند آدمی، پڑھا لکھا آدمی، غیر پڑھا لکھا آدمی،
मालदार गरीब जो भी हाजी है सब मिना के मैदान में पड़े हुए हैं कंकरियां मारने के लिए। तो अकल में बात नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, बंदा कंकरियां मारने के बाद फख्र महसूस करता है और ये कहता है कि मैंने हज के कामों में से एक काम ये भी कर दिया। तो अजीजों, हज एक ऐसी इबादत है कि अगर हम उसे अकल से सोचेंगे तो अकल में उसके अरकान और उसकी चीजें नहीं आने वाली। लेकिन मैंने बतलाया कि दीन की जो बुनियादी चीज है वो अल्लाह का हुक्म है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तुम्हें तुम्हारा रसूल जो दे उसे लो, उसे मजबूती से पकड़ो, उसे अपने अमल में ले आओ। और तुम्हारा रसूल जिन चीजों से तुम्हें मना कर रहा है, अगरचे अकल के एतबार से वो तुम्हें अच्छी लग रही है, तो हर ईमान वाले के लिए उसे छोड़ना जरूरी है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बिलाशुबह अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए हज एक अजीम शान इबादत है और एक आशिकाना इबादत है। लाखों के हिसाब से उश्शाक हर साल वहां जमा होते हैं और इस्लाम का यह अजीम शान रुकन अदा करते हैं। बड़ा खुश नसीब है वो आदमी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे हज के लिए कबूल फरमा ले। बड़ा खुश नसीब है वो आदमी, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में हाजिरी के लिए सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत मौका इनायत फरमाए। जब अल्लाह की मोहब्बत किसी बंदे के दिल में लग जाती है तो फिर उसे हर चीज में अल्लाह नजर आता है और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना उसके लिए आसान हो जाता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था, तमाम लोग अपने घरों में थे, जानवर भी साया तलाश कर रहे थे और सूरज पूरी आबोताब के साथ धूप बरसा रहा था, जमीन फूक रही थी कि अचानक उसी दोपहर के वक्त मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैं क्या देखता हूं कि एक माजूर आदमी, एक लंगड़ा आदमी दोनों हाथ इस तरह टेकते हुए और दोनों हाथों में चप्पल पहनकर इस तरह टेकते हुए आगे बढ़ता हुआ जाता है और पसीने में शराबोर है, उसकी खाल लाल पड़ गई है, धूप अपनी आग उस पर पूरी तरह से बरसा रहा है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रुक गए, कहने लगे, नौजवान क्या बात है, इतनी गर्मी में कहां जाना चाहते हो? वो कहने लगा कि मेरा हज का इरादा है और मैं हज करने के लिए जा रहा हूं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहने लगे, धूप का वक्त है, दोपहर बढ़ रही है, आओ तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, कुछ देर आराम कर लो और फिर शाम के वक्त यहां से निकल जाना। कहने लगे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मैं तो मुहताज हूं, मैं माजूर हूं और अगर मैं तुम्हारे यहां रुका तो इतना वक्त खराब होगा, हो सकता है कि मैं रास्ते में ही रह जाऊं और हज के दिन निकल जाए और मैं हज से महरूम हो जाऊं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहने लगे, नहीं नौजवान, तुम मेरे यहां रुको, खाना खाओ, आराम करो, मैं शाम को तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर दूंगा, तुम सवारी पर बैठकर बैतुल्लाह आराम से जाना। उस माजूर आदमी ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरफ बड़ी अजीब गरीब निगाह से देखा और कहने लगा, ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मैं तो तुम्हें बड़ा होशियार आदमी समझता था, तुम तो बड़े आलिम हो, मुझे ये बताओ, अगर कोई गुलाम अपने मालिक, अपने नाराज मालिक को राजी करने के लिए जाता है तो क्या वो सवारी पर बैठकर जाएगा? मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है और मैं उन्हें मनाने के लिए जा रहा हूं, मैं सवारी पर जाता हुआ अच्छा लगूंगा? और फिर ये कहता हुआ वो माजूर आदमी आगे बढ़ गया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक लिखते हैं कि बहुत दिन गुजर गए और पता नहीं वो कहां चला गया। इत्तिफाक से अल्लाह का हुक्म हुआ और अल्लाह ताला ने उसी साल मुझे भी हज करने का मौका इनायत फरमाया। तो जब मैं मिना से वापस हो रहा था, जमरात की रमी करके कंकरियां मारकर, तो मिना के एक कोने के अंदर एक भीड़ लगी हुई है और मजमा इकट्ठा हो रहा है।
मैंने देखा कि क्या बात है, कहने लगे यहाँ एक नौजवान है, पैरों से माजूर है और वो अल्लाह से बातें कर रहा है। वही कहता है कि अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, अल्लाह मैं तेरा माजूर बंदा हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। मौला तूने मुझे पैदा किया, मौला तूने मुझे खिलाया। अल्लाह ये मालदार लोग हैं, इन्होंने हज के सारे अरकान अदा कर दिए। अल्लाह मीना में भी गया, अरफात में भी गया, मौला सारी चीजें अदा की, लेकिन अल्लाह अब ये लोग कुर्बानी अदा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास माल है, लेकिन अल्लाह मेरे पास माल नहीं है और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्बानी नहीं कर सकता। अल्लाह ये तो जानवरों की कुर्बानियां कर रहे हैं, अल्लाह तू मेरी जान की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं अपनी जान तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। अजीजो, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये फरमाते हैं कि जैसे ही उसने ये कहा अल्लाह मेरी जान को कबूल फरमा ले, उसकी जान फौरन निकल गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अजीजो, जब किसी इंसान को इश्क हो जाता है, जब किसी इंसान को मोहब्बत हो जाती है, तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी उसके लिए देना आसान हो जाता है। आज हम लोग हज में ताखीर करते हैं। एक बड़ी तादाद है जिन लोगों पर हज फर्ज हो चुका है। क्या वो इस बात से नहीं डरते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी पर हज फर्ज है और वो फिर भी हज ना करे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अल्लाह बचाए ऐसी मौत से, अल्लाह ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। हज फर्ज है उस आदमी पर जिसके पास इतनी इस्तिताअत हो कि वो वहां तक जाने की सवारी का इंतजाम कर सकता हो और वहां रहने सहने का उसके पास खर्चा भी हो, और जो उसके बीवी बच्चे हैं जितने दिन वो वहां रहे इतने दिन उनका खर्चा भी हो। तीन चीजें हैं, सवारी का इंतजाम हो, वहां रहने के लिए उसके पास पैसे हो और उसके जो घर वाले उनके लिए इंतजाम हो। जिस आदमी के पास इतना माल है तो उस पर हज फर्ज हो चुका है। आज हम लोग कहते हैं पहले मकान बना लें फिर हज पे जाएंगे। हम लोग कहते हैं पहले बच्चों की शादी कर दें फिर हज पर जाएंगे। नहीं मेरे भाई, हज फर्ज हो चुका है तो सबसे पहले फुर्सत में हज करना चाहिए। लोग कहते हैं अगर हमने ये पैसे हज में लगा दिए तो फिर हम बच्चों की शादी कैसे करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, हज करने के बाद कोई आदमी गरीब नहीं होता, हज करने के बाद आदमी मालदार होता है। ये हज का खासा है। हर साल लाखों के हिसाब से लोग हज करते हैं, उम्रे करते हैं। कोई मुझे एक आदमी ये बतला दे कि मैं हज करने के बाद गरीब हुआ। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे जो हज करने के बाद मालदार हो गए हो। इसलिए अगर किसी पर हज फर्ज है, बेटियों की शादी को पीछे हटाओ, मकान को पीछे हटाओ, मौत का कुछ नहीं पता, अल्लाह की बारगाह में हाजी बनकर हाजिर हो। और हाजी हकीकी वाला हाजी होना चाहिए। हकीकी वाला हाजी क्या है? हज करने के बाद सारे गुनाहों को छोड़कर जिंदगी गुजारे, वो है हकीकी हाजी। ऐसा नहीं कि हज से पहले भी गुनाहों में मुलव्विस है और फिर हज करने के बाद भी जो का तू है। दाढ़ी हज से पहले भी कटाता था और हज के बाद भी दाढ़ी कटा रहा है, तो मेरे भाई उसके हज ने उसे फायदा क्या दिया? झूठ हज से पहले बोलता था और हज के बाद भी झूठ बोलता है, तो वो कैसा हाजी? वो हाजी नहीं बल्कि वो तो पाजी हो गया। उसका हज कैसे कबूल हुआ? इसलिए अजीजों, दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अपने बारगाह में कबूल फरमाए और अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत के लिए सबको कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।